देखो guys, laws of mechanics, fundamental law of mechanics और laws of mechanics. So जो भी fundamentals हम यूज करने वाले हैं मैकेनिक्स में, तो वो ये लॉस से आने वाले हैं. फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स ने चार लॉस दिए, थ्री, उनसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ वाला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, देन लॉ ऑफ ट्रांसलेटिविटी ऑफ फोर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. तो इतने सारे लॉज आज हमको देखने हैं. तो उसमें का फर्स्ट कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. बताओ गाइस, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या है? इनर्शिया नहीं सर, सेकंड वाला. एवरी इनएमिनेट बॉडी कंटिन्यूस in unit motion. Okay, exactly. Every body it is in motion. Yes, next. वो सर अपना बस वाला ना क्या एग्जाम था, ब्रेक मारा तो अपन मोशन में रहते. Law of inertia. When the body is at rest, will remain at rest unless and until an external force is applied to it. Exactly. हाँ, Exactly. बराबर. So it is also a law of inertia. Okay. So आप जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी को नहीं लगाओगे, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूविंग में करने के लिए, मूविंग में है तो उसको रेस्ट में करने के लिए, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी वो चेंज नहीं करेगा. वो स्टार्ट है यानी रेस्ट में है तो वो मूविंग में नहीं जाएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो. और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ब्रेक्स अप्लाई नहीं किया, तब तक वो रुकेगा नहीं. दैट इज नथिंग बट अ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, सो स्टेटमेंट लिखो गाइस, स्टेटमेंट लिखो. It said that every body continues. It said that every body continues. It said that every body continues. And in its state of rest, or state of rest or uniform in motion, state of rest or uniform in motion, uniform in motion, in a straight line, uniform in motion, in a straight line, in a straight line, straight line, unless it is completely, unless it is completely applied by an external agency on it. ओके, वो स्ट्रेटली मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंसी कुछ भी अप्लाई नहीं होता, तब तक वो कहां पे रहेगा? वो स्ट्रेट में ही रहेगा, स्ट्रेट में ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट लाइन. This leads to define sorry,
this leads to definition of force as the external agency which changes or tends to changes which changes or tends to change tends to change tends to change tends to change the state of rest or uniform the state of rest or uniform linear motion of body linear motion of the body linear motion of the body. Okay guys, फर्स्ट लॉ यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ये हो गया. नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ जैसे बताया वैसे सेकंड लॉ भी बता दो. F is equal to F equals to mg. फोर्स ma. फोर्स इज इक्वल्स टू ma. हाँ सर. ओके 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 करेक्ट. फोर्स इज इक्वल्स टू ma. उसने बोला है कि rate of change of momentum of body is directly proportional to the impressed force. ओके तो आप क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बोल सकते हैं. लिखो नेक्स्ट. इट स्टेट दैट second law, it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force. Impressed force. Impressed force. Impressed force. And it takes place in the direction. It takes place in the direction. It takes place in the direction of the force acting on it. Of the force acting on it. Of the force acting on it. Rate of change of momentum is equals to mass into
velocity. Mass into velocity. Okay, but mass does not change. मास अगर चेंज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. कल देखा अपन. ओके, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास इनटू वेलोसिटी, मास अगर चेंज नहीं हो रहा तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा. फोर्स इज इक्वल्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू rate of change of velocity. Rate of change of velocity is nothing but acceleration. Mass into rate of change of velocity is nothing but acceleration. Force is directly proportional to the mass into acceleration. Mass into acceleration. Yes, sir. Force is directly proportional to the rate of change of momentum. Momentum is equals to mass into velocity, but mass does not change. Mass is constant. Because of quantity is constant. Quantity is constant. Okay, that's why mass is constant. तो mass constant है तो variable कौन आ रहा है, velocity. Variable velocity हो रहा है, इसलिए rate of change of velocity. Rate of change of velocity is nothing but acceleration. That's why Newton's second law is equals to force is directly proportional to the mass into acceleration, or force is equals to mass into acceleration. But यहाँ पे एक constant लगेगा फिर Newton's constant. Okay. So next. न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये लॉ तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप ही मुझे सिखा सकते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ. बच्चा जानता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना. फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में थोड़ा दिक्कत रहती सबको, लेकिन थर्ड लॉ बच्चा जानता है. क्या है गाइस? Every action there is equal and अपोजिट रिएक्शन. opposite लिख के देने की instantaneous जरूरत है क्या reaction. आपको? लिख के देने की जरूरत है क्या आपको? नहीं. Okay, so fourth guys, directly every action it is equal and opposite reaction. That is nothing but Newton's third law. आप बॉल को फेंको, बॉल नीचे आएगा, नीचे आके फिर से ये फर्स्ट at a t time, t naught time is equals to 0. बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे टच करेगा, टच करने के बाद अगेन ऊपर रिएक्शन देगा, ऊपर चले जाएगा. ओके, तो एवरी एक्शन इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मैं बॉल बोल रहा हूं, दैट इज बॉल. ओके, तो बॉल को मैं नीचे फेंक रहा, नीचे फेंकने के बाद वो इस तरह आ रहा एक टी टाइम पे, और देन t1 टाइम पे, देन t2 टाइम पे वो इधर जा रहा, ऊपर जा रहा. ऊपर का की वजह से जा रहा, दैट इज रिएक्शन. एवरी एक्शन इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट्स व्हाई आप कोई भी अगर फोर्स अप्लाई करते तो वो आपका रिएक्शन देता. न्यूटन्स थर्ड लॉ ने ऐसे बताया है. देन नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी गाइस? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. फोर्थ,
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो हैंगिंग बॉल्स अगर एक में को अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी एक में को कोलैप्स क्या हो रहे हैं, आपके कोलिजन हो रहे हैं, तो उनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो जो भी इनके बीच का मास रहेगा, मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वो उनके बीच का फोर्स रहेगा। ओके, यानी this ball and this ball, here is mass 1 and mass 2 and the distance between of this it is d। तो इन दोनों के बीच का, ये दोनों एक वेग को कोलाइड होंगे तो उन दोनों का बीच का फोर्स कितना रहेगा, फोर्स रहेगा आपका F is equals to gravity, that G gravitation, G notation it is nothing but a gravitation, product of m1 into m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। तो ये इसके बीच का फोर्स रहेगा। ये किसने बताया है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। तो एक बॉल और सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं वन बॉडी एंड सेकंड बॉडी, उन दोनों में का जो भी फोर्स रहेगा कोलाइड्स होने जाने के बाद का या फिर कोलाइड्स के टाइम का, उन दोनों में का जो भी डिस्टेंस इनटू मास का प्रोडक्ट ऑफ मास divided by distance square into g, that g is nothing but a gravitation constant, that is nothing but a force, तो ये आपको किसने बताया है, ग्रेविटेशन लॉ ने बताया। ओके गाइस, सो ग्रेविटेशन लॉ भी लिख लो। ग्रेविटेशन लॉ क्या है, everybody attracts other body, everybody attracts other body, everybody attracts other body, everybody attracts other body, everybody attracts other body। Everybody attracts other body। The force of attraction between two bodies, the force of attraction between two bodies, the force of attraction between two bodies, force of attraction between two bodies, between two bodies is directional property of their masses, is directional property of their masses, is directional property of their masses, directional property of their masses, and inversely proportional to the square of distance inversely proportional to their square of distance between them, square of distance between them, between them। ओके, तो वही लिखा है अपन ने वहां पर m1 into m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। तो वही आपका क्या रहेगा गाइस, फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स। where g is equals to, आप g लिखो, g is equals to, where g is equals to where g is equals to constant of proportionality,
constant of proportionality and is known as constant of gravitation, and it's known as constant of gravitation. Constant of gravitation. Constant of gravitation. Next, guys, transmissibility of force. Transmissibility of force. ये बहुत जगह पर यूज करने वाले ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. पहले स्टेटमेंट नहीं लिख के देता मैं, पहले आपको ये क्या होता है ये बता देता. ओके, कि सपोज ट्रांसमिसिबिलिटी का बोलना क्या है कि सपोज दिस इज अ बॉडी, आप यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो वही फोर्स आप इधर भी लगा सकते हो. ओके, वही फोर्स आप इधर भी लगा सकते हो. नेचर पुश का, यानी अभी आप पुश का पुल हो जाएगा, बट लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा, बॉडी पे भी वही असर करेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा. ओके, यानी ये टी नॉट टाइम पे आपका ये था. यहां पे क्या कर सकता मैं, सपोज 1 मिनट थोड़ा सीधा लगा लेते हैं, यानी बेटर रहेगा. एफ टी नॉट टाइम, T1 टाइम, F की वजह से यहाँ पे कुछ तो भी एक F लगेगा रिएक्शन, तो मैं एक F लगा सकता था. F it is equals to cancel. F is equals to cancel. Okay, और this F equals to cancel. और मैं यही लाइन ऑफ एक्शन पे अगेन सेम F मैं इधर लगा सकता हूँ. ओके, तो ये मैं कैसे कर सकता, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से मैं कर सकता. ओके, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं कर सकता, यानी जो भी मेरा फोर्स है, ये फोर्स अगर ये पॉइंट पे लग रहा है, दैट वन पॉइंट पे लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अ वन पॉइंट पकड़ लो, दैट इज नथिंग बट अ सेकंड पॉइंट. सो मैं उसको ट्रांसफर कर सकता वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, बट लाइन ऑफ एक्शन से, वही लाइन ऑफ एक्शन से, ये ही लाइन ऑफ एक्शन से, उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होने को, लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होने को. ओके, सो और ये हम बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. एग्जाम्पल है, ये फोर्स को हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन ये क्या लेके आया, यहाँ इसके साथ मोमेंट लेके आया. क्या मोमेंट लेके आया, सपोज दिस इज फोर्स F, दिस डिस्टेंस D, तो ये फोर्स तो जैसे कि वैसे ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसके साथ क्या लेके आया, ये मोमेंट लेके आया. मोमेंट कितना लेके आया गाइस, F into D, F into D, ये मोमेंट लेके आया, मोमेंट. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स. फोर्स तो जैसे कि वैसे ट्रांसफर हो गया. अब आप बोलोगे सर लाइन ऑफ एक्शन पे अगर फोर्स मेरा ट्रांसफर हो रहा तो कोई मोमेंट आएगा क्या? नहीं. लाइन ऑफ एक्शन पे अगर मैं ट्रांसफर कर रहा मेरा जो भी मोमेंट्स है उसको, तो यानी सॉरी फोर्सेस है उसको, तो कोई भी मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. मोमेंट कब आएगा, जब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा तब आपका मोमेंट आएगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं तब आपको मोमेंट आएगा. तो ये हम बहुत बहुत जगह यूज करते हैं. तो मैंने एक स्मॉल एग्जांपल बताया कि अपन ये जब इस तरह का क्वेश्चन रहता मेरे दोनों बीम के ऊपर, यानी बीम के ऊपर जब क्वेश्चन रहता तब मैं इस तरह रिजोल्यूशन करता इसका, तब मैं इस तरह इसका रिजोल्यूशन करता. दिस रिजोल्यूशन इज नथिंग बट
ट्रांसफिलिटी, फोर्स ट्रांसफर कर रहा हूं, तो फोर्स जब भी ट्रांसफर कर रहा तो ट्रांसफर करने के बाद उसके साथ उसका मोमेंट भी आता, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहा, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं रहा तो। ओके, एंड अगेन इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, this force again I can draw like this also and take like this also. ओके, तो ये कैसे कर रहा हूं, this ट्रांसफिलिटी से मैं कर रहा हूं। ओके, सो लिख लो गाइस, इसका भी स्टेटमेंट लिख लोगे, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपको, और आपको ये समझने को होना कि इसने क्या बोला है और आप क्या कर सकते हो। ओके ओके गाइस, स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the state of rest or motion, the state of rest or motion of the rigid body, of the rigid body, of the rigid body of the rigid body is unaltered is unaltered if the force acting on the body, if the force acting on the body is replaced by another force, is replaced by another force, replaced by another force of the same magnitude and direction, of the same magnitude and direction, same magnitude and direction, magnitude and direction, but acting anywhere on the body, acting anywhere on the body, on the body, acting anywhere on the body along the line of action, along the line of action of the replaced force, along the line of action of the replaced force, line of action of the replaced force, replaced force, यानी यहां पे भी आप लगा सकते हो, यहां पे भी आप लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लाइन ऑफ एक्शन पे ही लगा सकते हो, जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वहां पे, लाइन ऑफ एक्शन के बाहर लगेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मोमेंट आएगा, कपल आएगा। ओके, अगेन ये लॉ सिर्फ और सिर्फ आप रिजिड बॉडी के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके, रिजिड बॉडी के लिए ही यूज कर सकते हैं दिस लॉ। लिख लो गाइस, नेक्स्ट लाइन अगेन, in using law of transferability, law of transmissibility of forces, it should be carefully noted that, it should be carefully noted that it is applicable only, it is applicable only सर एकदा रिपीट करा. हाँ,
in using of law of transmissibility, in using law of transmissibility of forces, it should be forces, it should be forces, it should be carefully noted that carefully noted that noted that it is applied only if the body can be treated as rigid. Body can be treated as rigid. Law of parallelogram. Next, last law. Last law of parallelogram. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए ही काम है। दो फोर्सेस जो भी रहेंगे उसके रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो ही काम आएगा। तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस, पांच फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए आपको रिजोल्यूशन के लिए ही जाना पड़ेगा, रिजोल्यूशन मेथड के लिए जाना पड़ेगा। सो अगर आपके दो फोर्सेस है तो दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है, दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप जा सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जा सकते हैं। यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्या देगा कि दो फोर्सेस का एक फोर्स में कन्वर्ट करके देगा, दैट वन फोर्स इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट फोर्स, तो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैं सामने इसको डिराइव करके देता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के आपको क्वेश्चंस देखना है। इट इज सो इजी, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, बट पहले अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देन इसके ऊपर क्वेश्चंस के लिए आते हैं। ओके ओके गाइस, द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम of forces, law of parallelogram of forces enable us to determine the single force called resultant, the single force called resultant, which can replace the two forces acting. सर रिपीट करना एकदा. Okay. Law of parallelogram of forces enable us to determine the single force called resultant, which can replace the two forces acting at a point with the same effect
that the two forces, same effect as that the two forces. ओके गाइस, सो सब फोर्सेस एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस, एंड ओनली टू फोर्स, दो ही फोर्स का आप रिजल्ट निकाल सकते हैं आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स। ओके, तो ये लिमिटेशन है, ये क्या है, लिमिटेशन है काय के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के, और मैक्सिमम केस में लिमिटेशन ही पूछे जाते हैं। लिमिटेशन ही क्या है, तो लिमिटेशन यही है कि दो फोर्स के ऊपर है और दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से निकलने को, दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से निकलने को, यानी कॉन्करेंट रहने को, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, दिस अगेन नॉन कोप्लानर, यानी एक प्लेन पे भी नहीं है। ओके, और कोप्लानर भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे कोप्लानर नॉन कोप्लानर के लिए कुछ ये नहीं है, यानी कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप कोप्लानर भी ले सकते हैं, नॉन कोप्लानर भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी कॉन्करेंट एंड टू फोर्सेस, यानी क्या होगा आपका टू फोर्सेस ही रहेगा, थ्री फोर्स फोर फोर्स के लिए आपका ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको काय के लिए जाना पड़ेगा, ट्रायंगल 3 के लिए, देन 4 के लिए आपको डायरेक्टली रिजोल्यूशन, गाइस रिजोल्यूशन इज द बेस्ट मेथड, आप डायरेक्टली रिजोल्यूशन करके उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अपन सामने देखेंगे। अब इसको अपन डिराइव करके देखेंगे कि इसके साथ किस तरह डेरिवेशन हो सकता है। यहाँ पे आपके पूरे लॉस जो है वो लॉस खत्म हो गए। ओके, यानी बेसिक इज ओवर गाइस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रिजल्टेंट and equilibrium of system of coplanar concurrent forces। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लानर एक ही प्लेन पे और कॉन्करेंट एक ही इस पे। ठीक, तो अगेन सेम थिंग, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, F1 F, इसके बीच का एंगल इट इज थीटा,
एक F1 एंड एक F2, सॉरी इसको F1, इसको F2, नेक्स्ट F2 F1। तो मुझे क्या निकालना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अगर अप्लाई करता हूं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे यहां से ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा गाइस। सो मैं इसको नेमिंग दे देता, दैट इज ए, दैट इज बी, सी, डी एंड ई। ओके, ए बी सी डी ई। तो अभी ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा है अल्फा, दिस इज माय बीटा, और ये आपका है थीटा टोटल। ओके गाइस, दिस इज आर रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज आर व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। तो अभी F1 फोर्स और F2 फोर्स, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ओके, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू AC। इज इक्वल टू AC। अब अगर आप ये ट्रायंगल पकड़ते A C E, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या लग रहा है आपको, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, ये ट्रायंगल अगर आप पकड़ते तो दिस इज 90 डिग्री, अंडर रूट ऑफ AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, है ना। रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू AC, R इज इक्वल टू AC। AC के लिए क्या हो रहा, AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बट R इज इक्वल टू, अभी क्या है, R इज इक्वल टू AD, इट इज F AD प्लस क्या है गाइस, DE है। ओके, सो मैं क्या लिख सकता है इसको, मैं लिख सकता है इसको, रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू AE प्लस F1 नहीं, सॉरी, D1 DE स्क्वायर प्लस दैट E sorry EC square। okay, so सर AD प्लस DE आएगा ना, exactly AD प्लस DE। 1 मिनट गाइस, थोड़ा यहाँ पे नहीं है, elongation ज्यादा है, यानी this parallel to this, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। प्रिंटिंग एरर इज देयर, सो जस्ट प्रिंटिंग एरर अगर रहा तो कंसेप्ट एरर रहेगी, सो प्रिंटिंग एरर को पहले ठीक कर लेते हैं। this parallel to this, okay, this parallel to this, तभी पैरेललोग्राम आ, that is nothing but a E। okay, अब मैं क्या बोल रहा है, ये पैरेलल टू ये है, यानी ये क्या है गाइस, F2 फोर्स है। ओके, ये क्या हो गया, यानी F2 फोर्स हो गया, यहां से लेके यहां तक। अगर ये पैरेलल टू ये बोल रहा हूं तो दैट इज F2 फोर्स ना, दैट इज F2 फोर्स, तो ये F2 फोर्स हो गया। और ये कौन सा है मेरा, F1 फोर्स, नहीं ये कौन सा है, F1 फोर्स, तो ये भी मेरा F1 फोर्स हो गया। ओके, सो अभी ये यहां से लेके यहां तक थीटा है, तो दिस इज अगेन थीटा, दिस इज अगेन थीटा। ओके, सो अभी ये अगर थीटा है तो F2 फोर्स
का अगर मैं रिजोल्यूशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, f2 cos थीटा एंड दिस इज f2 sin थीटा। ओके, आप ये भी बोल सकते हैं CD cos थीटा, CD sin थीटा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? अरे ज्योमेट्री है वाइस। हो ओके, अगर मैं ये लेता, ये मेरा r है, यहाँ पे ये मेरा थीटा है, तो ये r cos थीटा रहेगा, ये r sin थीटा रहेगा। वैसे कि अभी यहाँ पे ये f2 है, तो f2 cos थीटा, f2 sin थीटा, f2 sin थीटा। किस तरह sin थीटा इज इक्वल टू किस तरह है, sin थीटा इज इक्वल अपोजिट, अपोजिट, सपोज दिस अपोजिट, अपोजिट क्या है आपका CE and here is D, opposite, opposite upon hypotenuse or hypotenuse, sin theta is equal to, so hypo is what, opposite it is equals to CE, hypo is F2, तो आपका यहां से क्या निकला, F2 is equals to CE is equals to F2 sin theta, वही आपने यहाँ पे लिख दिया। cos adjacent divided by height is adjacent is nothing but DE divided by F. So DE divided by F2 is nothing but F2 cos theta is equals to DE, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो अभी ये इसमें पुट कर दो गाइस, तो क्या होगा, R is equals to, एंड अभी यहाँ पे क्या है, AD is equals to F1 next, AD is equals to F1, AD is equals to F1, so क्या हो जाएगा, F1 plus that DE is F2 cos theta का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है EC का स्क्वायर है ना, EC का स्क्वायर, तो EC क्या है मेरा, दैट इज F2 F2 sin थीटा स्क्वायर। तो अभी इसको ये करो, रिजॉल्व करो, F1 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos स्क्वायर थीटा, F1 2f1 f2 cos theta. yes exactly 2f1 f2 cos theta plus f2 cos theta square plus f2 sin theta square. We know that cos square theta plus sin square theta is equals to 1. f1 square plus twice of f1 f2 cos theta plus
F2 square because of cos square theta plus sin square theta is equals to 1. ओके, सो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। Okay guys, this is the derivation of law of parallelogram for coplanar concurrent forces. Coplanar concurrent forces इसके ऊपर न्यूमेरिकल से 1 मिनट। समझ गया? अगर कोई डाउट होगा तो पूछो प्लीज, मुझे तो नहीं लगता आपको डाउट होगा कहीं, होगा तो आप पूछ लो प्लीज, हो सकता है। कोई डाउट है गाइस इसमें? नहीं सर। सही में किसी को भी डाउट नहीं है? ठीक है, सही में नहीं है ना किसी को भी डाउट? नो सर। ओके, तो डायरेक्शन, अभी ये रिजल्ट निकाल लिया तो अभी इसका डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन क्या रहेगा? tan अल्फा। ओके, ये कहां पे एक्ट कर रहा है? रिजल्टेंट, द इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस F1. ओके, सो direction of resultant, direction of resultant from F1 and F, तो सबसे पहले F1 निकालिए from F1 tan alpha, tan alpha opposite upon adjacent, tan alpha, alpha ले रहे तो opposite upon adjacent, opposite क्या है guys? CE, adjacent क्या है? AE, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा अपन CE, यानी क्या देखा थोड़ी देर पहले? F2 sin थीटा, AE क्या देखा? AD F1 प्लस F2 cos थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा is nothing but आप बोल सकते हो tan alpha is equals to F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta। अब बीटा से अगर निकालते तो यानी क्या कि F2 से अगर निकालते तो क्या होगा? F2 से अगर निकालते तो क्या होगा? फ्रॉम tan beta, tan beta opposite upon adjacent, sir opposite upon adjacent, how can you this, आप ये कैसे क्या ले सकते हैं? ओके, सो ये opposite upon this adjacent मैं ले सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया पुट टोटली दैट opposite, तो ये टोटली मैंने लिया तो यहाँ पे ये opposite upon ये adjacent, तो वैसे ही आप इसका भी ले सकते हैं बीटा का। बीटा के लिए आपका opposite क्या हो रहा है? बीटा के लिए opposite क्या हो रहा है? opposite दिस हो रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। 1 मिनट,
next let this 9 वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा 15। जैसे अभी ये F1 से निकाल रहा है तो F1 कांस्टेंट है, F1 कोई चेंज नहीं हो रहा। वैसे अगर अपन इससे निकालते F2 से निकालते गाइस, F2 को अगर अपन इधर ला लेते और F1 को अपन उधर ले लेते, अगर बीटा ये पकड़ लेते, सपोज सेम कंडीशन रहेगी, बीटा अपन को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, तो बीटा अपन अगर यहाँ पे पकड़ लेते तो क्या होगा, ऊपर क्या रहेगा आपका F1 sin थीटा डिवाइड बाय F2 प्लस F1 cos थीटा। अगर आप बीटा से निकाल देते, सेम कंडीशन, अगर आप बीटा को यहाँ पे ले लो अल्फा की जगह और दैट इज F2 ले लो, तो आपका सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, जिससे निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट है, जिससे निकाल रहे हैं, जिससे आपका ये निकाल रहे हैं F1 डायरेक्शन से निकाल रहे हैं, तो F1 कांस्टेंट है यहाँ पे। F1 को कोई cos थीटा वगैरह लग रहा है, नहीं लग रहा। F2 से निकाल रहे हैं इसलिए F2 कांस्टेंट रहेगा। बाकी F1 sin थीटा डिवाइड बाय F2 प्लस F1 cos थीटा। अगर मैं F2 से निकाल रहा हूं, अगर मैं F1 से निकाल रहा हूं तो F2 sin थीटा डिवाइड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। अगर मैं F1 से फाइंड कर रहा हूं तो F1 से फाइंड कर रहा है F1 कांस्टेंट, F2 से फाइंड कर रहा है F2 कांस्टेंट। ओके ओके यस, नेक्स्ट नोट, मैं इसको और एक फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसको डायरेक्टली इधर लिख सकता हूं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 प्लस F2 cos थीटा, इस तरह भी मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर अलग-अलग हम थीटा पुट करते तो वैल्यूज r के अलग-अलग आ सकते। ओके, वैल्यूज r के अलग-अलग आ सकते। कैन आई रेज दिस गाइस? कैन आई रेज दिस? हो गया आपका लिख के? हाँ सर, हाँ सर। नो, डायरेक्टली है। r is equals to minus F1 square plus F2 square plus is equals to 2 F1 F2 cos square थीटा, ये लिख सकता हूं। थीटा is equals to 0, क्या होगा? r is equals to max, theta is equals to 0, पहले कंडीशन थी, theta is equals to 0, r is equals to max, cos 0 क्या आएगा गाइस? 1. एग्जैक्टली 1। सो क्या आएगा आपका आंसर? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 प्लस F2 into 1 into 1। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? आप इसको क्या लिख सकते हैं? F1 plus F2 whole square. हाँ, F1 plus F2. F1 plus F2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली, अंडर रूट स्क्वायर के कैंसिल हो ये जाएगा। स्क्वायर और ये आप निकाल सकते हैं, तो दैट इज F1 प्लस F2. दैट इज R।
विच कंडीशन के लिए? ये कंडीशन के लिए। दैट इज योर F1, दैट इज योर F एट अ 0। ओके, ये कौन सा हो गया? ये थीटा इज इक्वल टू 0 कंडीशन के लिए। देन नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, F2 F1 90 डिग्री बेस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब क्या रहेगा? R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये रहेगा क्या? नहीं सर। F1 प्लस F2 into 0, so under root of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रहेगा बस, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट 180, नेक्स्ट 180, theta is equals to 180, theta is equals to 0 for R max, theta is equals to 180 for R min. Why? F1 F2 opposite here, that angle it is 180 degree, so 180 is minus 1, 180 is minus 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होगा, तो it is nothing but F1 minus F2, F1 minus F2 guys, F1 minus F2 directly, F1 minus F2. Next, if F1 is equals to F2, then what? Then what? If F1 is equals to F2, then what? Then क्या आएगा? 4. Then R is equals to F, सीधे सीधे मैं लिखता F1 is equals to F2 is equals to F now, F square plus F square plus twice into F, यानी ये भी F square हो जाएगा into cos theta। क्या हो गया इसमें? twice F square plus twice F square cos theta, twice F square plus twice F square cos theta, twice F square cos theta। ओके, तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? F स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, वो F निकल जाता है आपका, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल। कैन आई दिस अगेन? हाँ सर। ओके, स्क्वायर और रूट कॉमन निकल जाता है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा? आप एक काम करो, तो R को रूट करो, यानी R को स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा? R स्क्वायर इज इक्वल्स टू twice F square plus twice F square cos theta। सो आप क्या कर सकते हो अभी? स्क्वायर करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है? स्क्वायर कर लिया तो क्या होगा? twice F वन प्लस cos theta, 1 plus cos theta F स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो दैट इज
आर स्क्वायर। ओके, अब अगर मेरा आर स्क्वायर एफ स्क्वायर मैं कैंसिल नहीं कर सकता, आर स्क्वायर एफ स्क्वायर वही रहेगा। अगर मेरा p इज इक्वल टू, ये मेरा आइडियल हो, जब f इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f2, लेकिन r कब फाइंड करेंगे, जब f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 120, सो थीटा 120 निकालो, थीटा इज इक्वल टू 120 के लिए क्या निकलता? -1/2 theta cos 120। -1/2 ना, हाँ -1/2 निकलता, लेकिन r इज इक्वल टू क्या निकलेगा? r इक्वल टू डायरेक्ट F twice f twice f cos theta by twice f cos theta by 2. Okay, r is equals to twice f cos theta by 2. 1 है। आप बोलेंगे डायरेक्टली कैसे क्या लिखा? डायरेक्टली नहीं, डिराइव। सो यहाँ तक तो आ गया, p is equals to a इसके लिए, तो r स्क्वायर लिख लो। twice f स्क्वायर 1 minus 180 यानी 1/2 ना? हाँ सर फॉर्मूला है ना cos 2 थीटा का, वो अप्लाई कर रहे हैं शायद। हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई करके हो सकता है, लेकिन वो यहाँ के लिए है ना, यहाँ के लिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, और -1/2 डायरेक्टली वैल्यू आती है, तो यहाँ पे पुट करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, cos 30 cos 180 इज इक्वल्स टू -1/2। तो क्या है अभी, r स्क्वायर twice f स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट कैंसिल, तो r is equals to f, r is equals to f when theta is equals to 120. हाँ बोल, जॉइनिंग साठी प्रॉब्लेम येतात काय? एक मिनिट, मेल वरून ओके। सो कब रहेगा, जब 180 आप लोगे तब ये 1/2 अगेन 1/2 1/2 2 गेट कैंसिल, तो क्या बचा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू f स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू f स्क्वायर कब रहेगा, तब आपका जब आपका when थीटा इज इक्वल्स टू 120 तब r is equals to f, यानी r is equals to f1 is equals to f2 and theta is equals to 120, theta is equals to 120। हाँ, और इसको आप अप्लाई कर सकते और यानी इसको ट्वाइस cos 2 थीटा को ट्वाइस cos 2 थीटा को आप अप्लाई करके आप इसको रीफॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका रीफॉर्मेशन है r is equals to twice f cos थीटा by 2, इसमें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेटर वे गो फॉर दिस। ओके गाइस, नेक्स्ट झाला का महेंद्र जो है?
या फिर अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? समझा गाइस? ये यहाँ तक है। आर मैक्स, आर मिन, आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू पी, ये आपका काय पे रहेगा? 120 पे रहेगा। अब आता है तो प्रॉब्लम है था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मेल करो। सो गाइस, ये मैं मिटा देता। हो गया आपका लिख के? हाँ सर। तो इसके प्रॉब्लम देखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं एक जस्ट डायरेक्शनल ये लिख के देता कि इसके लिए क्या क्या हो सकता है, फॉर्मूले जो आपको इंपॉर्टेंट है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 180 minus theta is equals to minus cos theta, sin 90 plus theta is equals to cos theta, cos 90 minus theta is equals to sin theta, sin 90 minus theta is equals to again cos theta, and cos 90 plus theta is equals to minus sin theta, यहाँ पे that is plus cos theta, and then sin 90 plus theta, sin 90 minus theta is nothing but a cos theta. Okay, ये आपको इसमें है कहना है guys। आपके 10 तक हुआ, ये सब आपने फॉर्मूले देखे। ओके डन। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degree and 120 degree. Okay, sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by 2, sin 60 root 3 by 2 1, then next root 3 by 2 again. Okay, 180 के लिए 0 रहेगा। अब मेरे को सिर्फ यहाँ तक ही काम किया। 1, then root 3 by 2, then 1 by root 2, ये दोनों सेम ही है, then 1 by 2, then 0, then minus 1 by 2. The next, that is tan theta is equal to sin theta by cos theta, sin by cos. So sin by cos 0, 1 by क्या हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, तो 1 by क्या आ रहा, सिर्फ root 3, 1 by root 3, this divided by this 1, this divided by this, क्या बच रहा, 2 2 गेट कैंसिल, root 3 बच रहा, this divided by this infinity. Okay, this divided by this again minus root 3. Okay, तो ये अपने काम के है, ये आपको याद रहने को। अपन कल इसके क्वेश्चंस देखते हैं, कल इसके हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखेंगे एंड रिजोल्यूशंस देखेंगे। तो अभी आपको लिटिल बिट बोर नहीं होगा क्योंकि अभी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गए, तो कैलकुलेशंस में बोर नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं समझा होगा तो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझा है, जो भी मैंने प्रिंटिंग एरर भी किए हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ ना कुछ मेरे डिजाइन से चलता रहता और मेरा ये भी चलता रहता, तो मेरा प्रिंटिंग एरर होता है, तो प्रिंटिंग एरर होता है यानी राइटिंग एरर होता है, तब आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा राइटिंग एरर हुआ। ओके, सो ओके गाइस, कल मिलते हैं फिर।
सर इरिगेशन नहीं है क्या अभी? नाही, इरिगेशन संध्याकाळी 8 वाजता.